Good morning, student. Welcome again to the online session of class 6 Science. Dear student, we are taking the chapter Fiber to Fabric. Fiber to Fabric ये chapter हमने लिया है and near about उसके सभी topic complete कर दिए. It's time to complete the exercise of this chapter. So now let's continue. Why I am not writing the question answers on the board? The reason is now your homework, next homework will be complete the question number 5 of your exercise. Question number 5 which contains the short answers, also include the long answers also. Okay, so अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया बोर्ड पे तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट व्हाट दे डू, दे जस्ट पॉज द वीडियो, वो वीडियो को पॉज कर देते हैं एंड पॉज करने के बाद फिर जो स्क्रीन पर रखा है उसको जूम कर करके देख के लिखते हैं. बट आई डोंट वांट दिस फ्रॉम यू. आई वांट कि आपको क्वेश्चंस समझ में आना चाहिए. मैं यहाँ पर क्वेश्चन आंसर समझा के दूंगा. समझ में आने के बाद फिर आप यू कैन ईजिली राइट द आंसर्स इन योर ओन वर्ड्स. आप अपने खुद के ओन वर्ड्स में उसके आंसर्स लिख सकते हैं. सो देयरफॉर मैं इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर्स है वो कैसे लिख के देने वाला हूँ. यस, ये सिर्फ समझा के देने वाला हूँ, लिख के नहीं दूंगा. क्लियर? सो लेट्स बिगिन आवर क्वेश्चंस. इसके पहले मैंने आपको होमवर्क दिया था क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 फ्रॉम योर एक्सरसाइज ऑफ द टेक्स्ट बुक, पेज नंबर A35. A35 का पेज नंबर A35 में जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 इज फिल इन द ब्लैंक्स. Question number 2 is the statement are given below are incorrect. Write the correct answers. Question number 3 is match the statement. And question number 4 is true and false. तो ये चारों क्वेश्चंस आपके होमवर्क थे. कुछ स्टूडेंट्स ने काफ़ी अच्छे से उसको लिख के फिर फोटोग्राफ खींच के मुझे भेजा है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ने नहीं भेजा है. Soon I'll post the name of the student who didn't complete their homework. जिन्होंने होमवर्क कंप्लीट नहीं किया है उनका नाम मैं ग्रुप में डालूंगा कि these students have not completed homework. So if you don't want, आपको ऐसा लगता है कि आपका नाम उस लिस्ट में नहीं होना चाहिए तो आप होमवर्क कंप्लीट करके तुरंत भेजो. एंड टुडेज होमवर्क ऑल्सो द कंप्लीट एक्सरसाइज. ओके, क्वेश्चन नंबर 5, कंप्लीट द क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ दिस एक्सरसाइज. क्वेश्चन नंबर 5 के क्वेश्चंस मैं आपको समझा देता हूँ. ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज, सो लेट्स बिगिन. ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज why do we wear clothes? Why do we wear clothes? हम clothes क्यों पहनते हैं? So here the basic requirement for this we wear the clothes is to protect from the cold. सबसे पहले क्या है? To protect from the cold and also to protect. देखो इसके जो आंसर है ये आपके पेज नंबर A34 पे दिया हुआ है. Clothes protect from the cold winds, heat and other climatic conditions. ठीक है, cold, heat and other climatic conditions. Second, clothes protect us from minor injuries. यानी हम कपड़े पहने होते हैं इसलिए minor injuries जो है वो injuries भी हमें नहीं होती. And then third one, clothes help us to maintain our body at a suitable temperature. यानी clothes की वजह से ही हम अपने body का temperature maintain कर सकते हैं. Clothes help us to maintain the body temperature. So the answer you have to write like this: we wear the clothes for number 1 to protect from the cold, heat, number 2 to protect from injury, and number 3 to protect from minor injuries के बाद to protect from or to maintain the temperature. Third point is to maintain the temperature. So this is the answer of question number 1. शॉर्ट आंसर से 3 points you have to write. Done. और एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि you have to write like this: we wear the clothes because number 1 to protect from cold and heat, number 2 to protect from injuries, and third to protect or to maintain the temperature. ओके, तो ये 3 रीजंस आपको लिखने हैं. डन. जल्दी हमें बहुत सारे क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा फास्ट लेते हैं. नंबर 2 क्वेश्चन, नेम 2 मैन मेड एंड 2 नेचुरल क्लोथ मटेरियल.
to man-made and to natural cloth material. So the example, आंसर आपको ऐसे लिखना है, the example of man-made material are नंबर 1 नायलॉन, नंबर 2 रेयॉन. देखो मैं चाहता तो अभी बोर्ड पे लिख देता हूँ, लेकिन आप वहाँ से जस्ट कॉपी करोगे. आई डोंट वांट दैट. आई वांट टू इम्प्रूव योर लिसनिंग स्किल्स, क्योंकि जब मैं यहाँ से बता रहा हूँ और आप सुन रहे हैं तो इससे आपकी लिसनिंग स्किल्स इम्प्रूव होती है. लिसनिंग स्किल, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर रीड करके बता रहा हूँ. ओके, लिसनिंग स्किल्स इम्प्रूव होगी और लिसनिंग के थ्रू फिर जब आप उसको समझेंगे उसके बाद यू कैन राइट ओके द आंसर्स. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम टू मैन मेड एंड टू नेचुरल क्लॉथ मटेरियल. तो मैन मेड में क्या आएगा? पॉलिस्टर, रेयॉन, नायलॉन. हाँ, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ मैन मेड क्लॉथ मटेरियल. नायलॉन, polyester, rayon, it is. Then natural cloth material. First one is silk, second one is what? Cotton. Silk and cotton. Wool is also there. Wool जिसे हम स्वेटर बनाते हैं ना. Then question number 3. Name the parts of the plant which bears fibers in case of. यानी अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो एग्जाम्पल्स दिए हैं वो किस पार्ट ऑफ द प्लांट से मिलते हैं. तो आंसर आपको इस तरीके से लिखना है, द पार्ट ऑफ द प्लांट्स आर, द पार्ट्स ऑफ द प्लांट आर नंबर 1. फॉर नंबर 1 आएगा कॉटन. कॉटन किस पार्ट से मिलता है प्लांट के? कॉटन यानी क्या है? कॉटन जो है वेदर इट इज द स्टेम, फ्लावर, फ्रूट, रूट, क्या है? तो वी नो दैट कॉटन जो मिलता है हमें वो कॉटन बॉल. कॉटन बॉल जो होता है ये एक फ्रूट होता है कॉटन प्लांट का. पहले फ्लावर आते हैं येलो कलर के, फिर उसके बाद उसमें फ्रूट ग्रो करता है और वो फ्रूट होता है कॉटन बॉल का. तो इट इज़ अ फ्रूट. व्हाट कॉटन इट इज ऑप्टेन फ्रॉम. तो आपको ऐसा लिखना है नंबर 1 कॉटन डैश करके उसके आगे लिखेंगे फ्रूट. दैट्स इट. नंबर 1 कॉटन, कॉटन क्या है? फ्रूट्स. फिर नंबर 2 है कॉटन के बाद जूट. तो नंबर 2 लिखेंगे जूट. जूट इज ऑप्टेन फ्रॉम स्टेम. तो उसके आगे हम लिखेंगे स्टेम इस तरीके से. FIBRES. Fibers obtained from number 1 fruit, third one is coconut. Coconut is the outer covering of the fruit. Outer covering of the fruit, इसीलिए इसको हम fruit ही बोलेंगे. Okay. So this is how we can obtain the fibers. Now next question is, what kind of fibers are used to making the yarn? What kind of fibers? So here देखो यहाँ पे ये नहीं पूछा है कि नेचुरल फाइबर, आर्टिफिशियल फाइबर, ऐसा कुछ नहीं पूछा है. यहाँ पूछा है विच टाइप ऑफ फाइबर्स. सो ट्विस्टेड फाइबर्स. ट्विस्टेड फाइबर्स आर यूज्ड टू मेक द yarn. यानी फाइबर्स को कैसे करते हैं? एक दूसरे के साथ ट्विस्ट करते हैं एंड इट मेक्स द yarn. सो आंसर इज ट्विस्टेड फाइबर्स आर यूज्ड टू मेक द yarn. ट्विस्टेड फाइबर्स, हाई क्वालिटी ट्विस्टेड फाइबर्स. So next is classify the following fibers as natural and synthetic fiber. In this question you have to make two columns. Okay, ये है आपका क्वेश्चन नंबर. क्लासिफाई द फॉलोइंग फाइबर्स एज नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर. क्वेश्चन नंबर 5. So answer 5, you have to make two columns. Here you can write natural fiber and second one is क्या है? synthetic. Make two columns of the same width. आप इस तरीके से दो कॉलम्स बना दीजिए. It's a heading. So make it
and now you can write the examples which are given there. अब जैसे दिए है यहाँ पर नायलॉन, नायलॉन कैसा है? Yes, synthetic. Second one is jute, natural. The next one is wool, natural. The next one is polyester, polyester. Okay. Then cotton. Then cotton के बाद है silk. Then silk के बाद coir. 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 Okay. So this is what the natural and synthetic fibers: jute, wool, cotton, silk, coir, nylon, polyester. Done. I hope कि आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आ रहे होंगे. ओके, नोट इट डाउन. Now after this question, that is question number 5, classify. After this question number 6, name all the process involved in the serial order for making cotton fabric from the raw cotton. अब इसमें आप क्या लिखना है कि सबसे पहले क्या होता है. जैसे देखो, मैं आपको एक रफ आइडिया दे देता हूँ कि जैसे सबसे पहले कॉटन प्लांट से हमने कॉटन बॉल लिया, फिर कॉटन बॉल जब फुल्ली मैच्योर हो गया तो उसमें से हमने कॉटन को सेपरेट किया, कॉटन और सीड्स को सेपरेट किया. तो दिस इज कॉल्ड एज यस गिनिंग. सबसे पहले हमने गिनिंग प्रोसेस की, कॉटन बॉल, गिनिंग के बाद फिर जितना भी सीड्स थे उसके सेपरेट किए हमने कॉटन के, फिर उसके बाद उसके फाइबर्स हमने सेपरेट किए एंड विद द हेल्प ऑफ यस स्पिनिंग प्रोसेस में विद द हेल्प ऑफ टकली और यू कैन से चरखा, है ना, चरखा या टकली के हेल्प से हमने उस फाइबर से बनाया यान को विद द प्रोसेस ऑफ वीविंग हमने बनाया फैब्रिक, और फैब्रिक से फिर क्लोथ्स. तो ये पूरी प्रोसेस है. तो इसको आपको सिंपली एक लाइन में लिखना है जिसमें हम इस तरीके से लिखेंगे. सबसे पहले क्या होता है वो एक सिंपल so here the answer is for answer 6, the process of making sixth one fabric is सबसे पहले कॉटन प्लांट से क्या मिलेगा हमें? कॉटन बॉल के बाद हम उसको क्या करेंगे? सेपरेट करेंगे यूजिंग द प्रोसेस ऑफ गिनिंग. फिर गिनिंग के बाद क्या होता है, हम क्या करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस गिनिंग करने के बाद हमें मिलेगा फाइबर्स. विद इस फाइबर्स को हम विद द हेल्प ऑफ मशीन एंड द प्रोसेस कॉल्ड स्पिनिंग हम बनाएंगे यार्न, और यार्न को विद द हेल्प ऑफ और यू कैन से विद द प्रोसेस ऑफ वीविंग यू कैन मेक इट फैब्रिक और फैब्रिक से बनता है क्लोथ. ठीक है. सो नाउ प्रोसेस ध्यान से देख लो डियर स्टूडेंट्स. सबसे पहले कॉटन प्लांट से हमें कॉटन बॉल मिला. कॉटन बॉल को हमने गिनिंग में भेजा जिसमें हमने सीड्स को सेपरेट किया. फिर उस गिनिंग से हमें फाइबर्स मिले. फाइबर को स्पिनिंग प्रोसेस से हमने बनाया यार्न.
उस यान का वीविंग प्रोसेस से हमने बनाया फैब्रिक और फैब्रिक से बनाया हमने क्लोथ। तो ये एक कंटिन्यू प्रोसेस है। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, नेम 2 एटम्स दैट आर मेड फ्रॉम द कोकोनट फाइबर। सो कोकोनट फाइबर से बनी हुई है डोरमैट, देन रोप, ओके, रोप एंड डोरमैट। देन नेक्स्ट वन इज एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम द कॉटन फाइबर। तो ये जो प्रोसेस हमने अभी देखी है और ये ऑलरेडी बुक में दी है, दिस इज फॉर यू, आप इसको रीड करके कर लीजिएगा। द नेक्स्ट वन इज व्हाई इट इज नेसेसरी टू स्पिन द फाइबर सो एज टू मेक यार्न। नाउ अब ये स्पिन क्यों जरूरी है फाइबर्स को सो दैट यार्न बने। सो फाइबर्स आर द स्मॉल पीसेस और यू कैन से स्मॉल थ्रेड्स, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं फाइबर्स के। व्हेन यू स्पिन इट, इट फॉर्म्स द स्ट्रॉन्ग यू कैन से यार्न। तो इसका है यहाँ पर व्हाई वी नीड अ स्पिनिंग, प्रोसेस ऑफ स्पिनिंग। सो इट इज गिवन इन पेज नंबर 29 and 28. Spinning, the process of twisting the fibers as to make the stronger thread is called spinning. अब स्पिनिंग किस लिए बनाया जाता है, सो दैट इट कैन होल्ड ऑल द फाइबर्स टुगेदर एंड मेक द यार्न। व्हाई वी स्पिन इट, स्पिनिंग ऑल्सो ट्विस्ट एंड इंटरलॉक द फाइबर्स। सो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, स्पिनिंग ट्विस्ट द फाइबर्स which interlock and make a strong yarn. Okay, इतना ही लिखिए, spinning interlock the fibers which make the strong yarn। यानी एक strong yarn बनाने के लिए वो interlock हो जाते हैं, इसलिए हम उसको spin करते हैं। Okay, the next one is how jute fibers removed from the dried jute stalks। जूट स्टॉक्स को कैसे फॉर्म किया, जूट स्टॉक से जूट कैसे ऑब्टेन करते हैं। सो द जूट